السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری ہر ویڈیو کو آپ لوگ ضرور دیکھتے ہوں گے۔ ہر انسان، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی تو صرف اللہ پاک نے اپنے مبارک دین کے اندر رکھی ہے۔ دیکھو، میں تم کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ جتنے نبی آئے، کما بیش 1.25 انبیاء علیہ السلام آئے، سب نے صرف دین کی ہی دعوت دی۔ سب کو پتہ ہے دین کی دعوت دی، اپنی کوئی ذاتی غرض نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہے مجاہد پسند ہے، قربانیاں پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی وہ ساری جنگ کرنے کی، اور جب وہ طائف کی طرف گئے کیا ضرورت تھی اتنی محنت کرنے کی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ان سے بہت قریب ہے۔ وہ چاہتے تو پل بھر میں ہی، پلک جھپکتے ہی سب کچھ کر دے۔ اللہ پاک ہے، قربانی کی ضرورت ہے۔ دین جو زندگی میں آیا ہے وہ قربانیوں کی بدولت، محنت سے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آپ سوچو، اللہ پاک نے ہر نبی کے لیے توڑ دیا۔ دیکھو، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو دور تھا وہ سر نکالنے کا دور تھا، سریلی آواز، بہت بہترین آواز والے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے ان کے لیے توڑ دیا۔ داؤد علیہ السلام کے لیے ایسی سریلی زبان دی، ایسی سریلی کہ وہ جنت کے اندر بھی قرآن پڑھے گا تو وہ اللہ پاک خود سورہ رحمان سنائیں گے داؤد علیہ السلام کی زبان میں۔ اب بتاؤ، ان سارے لوگوں سے کہا، اب بتاؤ ہے کوئی اس کے مقابلے میں، اس آواز کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو؟ تو اللہ پاک نے دی ہو۔ تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو دور تھا وہ تھا جادو کا جو دور تھا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان قوم کو، ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کے لیے بھی توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی دے دی، وہی دیے نا لاٹھی، سب کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پر گرتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے، اور ان سارے جادوگروں کو سانپ کھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دور، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا، اس کے زمانے میں جو دور تھا، زور و شور سے جو دور تھا اس کا، وہ تھا حکیموں کا۔ بڑے حکیم، بڑے اللہ پاک نے ان کے لیے توڑ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ کہا کہ ہے کوئی جو مردوں کو زندہ کر دے؟ نئے نا، پرانے مردوں کو زندہ کر دے۔ ہے کوئی ایسا حکیم؟ کوئی نہیں بولا، کیونکہ ایسا حکیم تو کوئی نہیں ہے۔ توڑ دیا ان کے لیے۔ ہے کوئی جو جنمتی اندھا ہو اس کو صحیح آنکھا کر دے؟ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ صلاحیت دی، وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام جیسا بنو، ابراہیم علیہ السلام جیسا بنو۔
क्योंकि अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सारी जितनी अल्लाह ताला ने ये दुनिया में और आखिरत में आसमानों में चाँद सितारे सूरज सारी चीज़ों के बारे में अपने नबी से बता दिया कि इसमें ये सलाहियत है, इसमें ये खासियत है, ये काम करता है, ये पेड़ में शिफा है, मिट्टी का ये काम है, वो काम है, सारे काम गिनवा दिए अल्लाह ताला ने। और फिर कहा कि अब बताओ कि तुम मेरे हो या फिर इन चीज़ों के। सारी सलाहियत बता दी, यही भाई इसमें ये खासियत है, इस पत्थर में ये खासियत है, चांद में ये खासियत है, चांद रोशनी देता रात को, सूरज में ये खासियत है, सूरज में ये ताकत होता, सारी चीज़ें गिनवा दी जितनी भी अल्लाह ताला ने बताई, और नबियों के लिए नहीं हुई। फिर कहा कि अब बताओ कि तुम मेरे हो या इन चीज़ों की तरफ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह ये बताइए कि जो सलाहियत इन चीज़ों के अंदर है वो इनके अंदर है ही या फिर कहीं बाहर से आती है। जो सलाहियत अल्लाह ताला ने इनको गिनवाई थी वाकई में इनके अंदर है या ये सलाहियत कहीं बाहर से आती है। गौर से सुनिए, क्या बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान देकर, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, इनमें ये सलाहियत नहीं है, ये तो कहीं बाहर से आती है। इतना सुनते ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, सारी चीज़ों से इनकार कर दिया कि करने वाली जात अल्लाह की है, तो चीज़ों में ये सलाहियत है ही नहीं, बाहर से आती है, तो इनका मैं क्या करूँ। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे बनिए। उन्होंने इनकार किया हर चीज़ों का, सारी चीज़ों का इनकार किया सिवाय अल्लाह के। करने वाली जात किसकी? अल्लाह की। अब आ जाइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, यहाँ जो जोर शोर था वो शेर और शायरी का था। बड़े बड़े शायर थे, बड़े बड़े शायर थे। अल्लाह पाक ने कुरान उतारा, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना सानिका हुवल अब्तर। 3 शेर उतारे, 3 शेर बन गए ना, इन्ना सानिका हुवल अब्तर। अब इसमें चौथा मिलाइए। उनसे कहा कि इसको चौथा मिलाइए, भाई तुम इतने बड़े शायर बनते हो, अब इसकी टक्कर का लेके आओ। भाई इन्ना आतोइना कल कौसर, एक तो ये हो गया, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, इसका तोड़िए है, इन्ना सानिका हुवल अब्तर, एक लाइन होगी। अब इसकी दूसरी बराबर की लाइन लेकर आओ। सारे मक्का वाले परेशान, सबने कहा कि हमारे समझ में नहीं आ रही है कि अब इसकी जांच करी जाए, भाई ये झूठी है ये सच्ची है। उन्होंने ये 3 आयत लिखकर और कहीं दूर उनका कोई उस्ताद था जो सबसे बड़ा शायर था, उनके पास भेजी तो भाई इसका तोड़ दे, इसका तोड़ दे। उसने उनसे 6 महीने का टाइम मांगा। कितना? 6 महीने का टाइम मांगा कि भाई सारी किताबों को खंगालना पड़ेगा, जब यार कोई इसका तोड़ मैं बताऊँगा। तो ठीक है, 6 महीने का टाइम। अब वो 6 महीने पूरे हो गए। उसके बाद में फिर उसने कहा कि ये किसी इंसान का कलाम है ही नहीं। हम 6 महीने परेशान ही हो गए, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है जिसका हम तोड़ दें, हमारे बस की नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर दौर में अल्लाह पाक ने समझाए नबियों के ज़रिए, हम फिर भी
हम फिर भी देखें कि कुछ लोग मानने वाले बन जाएं और फिर बाकी लोग ना मानने वाले बने। आखिरी उम्मत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। जब तक ये उम्मत जन्नत ना चली जाएगी, जब तक सारी उम्मतों के लिए जन्नत हराम है। अभी जन्नत में कोई नहीं गया, आलम बरज़ख के अंदर हैं सारी रूहें आलम बरज़ख के अंदर हैं, अभी जन्नत के अंदर कोई नहीं गया। जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में नहीं चली जाएगी, जब तक उन उम्मतों को हराम करार दे दिया है। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत जन्नत में जाएगी, समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब मेरे भाइयों दोस्तों, समझिए आज का जो दौर है, ये जो दौर चल रहा है, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, नशा इख्तियार कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम देखते हैं सबको। कहाँ जा रही है उम्मत? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुजाहिदा उठाया, तकलीफ़ें उठाई, किसके लिए? आप तो बख्श आए थे, वो हमारे लिए तो किया उसने, हमारे लिए तो रोया, हमारे लिए तो भूख बर्दाश्त की, लेकिन हम नहीं समझ रहे। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि 99% जो उम्मत है वो सिर्फ मोबाइल की भाषा समझ रही है, मोबाइल की दुनिया के अंदर है। शायद कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मोबाइल के ज़रिए ही सही उन तक मेरी बात पहुँचे, अल्लाह के दीन की बात पहुँचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुँचे और वो मानने वाले बन जाएं। ये खुदा की कसम, क़यामत नज़दीक है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब आना स्टार्ट हो जाए। सुधर जाओ। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचाइए अपने अहल व अयाल को, तमाम मुसलमान मर्द और औरतों को उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। बचाइए उसको, अपने आपे को बचाओ, अपने अहल व अयाल को बचाओ। सबकी जिम्मेदारी है। हम समझ रहे हैं कि हम दूसरों को दावत दें, दूसरे जन्नत में चले जाएं, लेकिन हमारे अहल व अयाल जहन्नम में जाए। ये फिक्र चल रही है, देख लो। अरे पहले अपनी फिक्र करो, अपने परिवार की फिक्र करो। जब हम अपनी फिक्र करेंगे, जब हम आप सुधरेंगे, तो दुनिया ऑटोमेटिक सुधरेगी। कोई कहने वाला, जिस काम को हम करें उसी काम की हम दावत दे सकें। ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत आई अपने बच्चे को लेकर, कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह, मेरा ये बच्चा गुड़ खाता है, इसे मना कर दीजिए कि ये गुड़ ना खाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप इसको ले जाइए और कल आइए। उस औरत ने समझा कि शायद ठीक है, मैं कल आती। दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के से कहा कि बेटा गुड़ ना खाओ, आप गुड़ मत खाइए। तो ये सुनकर उस औरत ने कहा, या रसूलल्लाह, आप ये बताइए, इस बात को तो आप कल भी कह सकते थे, आपने दूसरे दिन क्यों बुलाया? कहा कि कल तक मैं खुद गुड़ खाया करता था, इसलिए मैं कल नहीं कह सकता। मेरे भाइयों दोस्तों, पहले खुद जमो, खुद अमल करो, फिर दूसरों को कहो। अल्लाह न चाहे कहीं मौत न आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम कि 7 चीज़ों के आने से पहले नेक आमाल में जल्दी करो। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।